All right, let's get started. Now we are looking into the last part of this particular second chapter of MA, that is cost classification. Let's look into this and let's get a strong understanding about this particular reading. So looking into cost codes, what about cost codes? What are cost codes? So when we talk about cost code is basically a code that is used in a costing system. Okay, what is a costing system? Is that a system where all the expenses are given a certain code. Okay, all the cost, all the expenses are given certain code. Just like how we have seen in certain web series that नाम भूल रहा हूँ मैं. Okay, so they called each other like Helsinki. They called each other whatever the name of places. I just forgot. I saw it a long time ago. तो सबके अपने कोड नेम्स होते हैं, है ना. सब अगर कोई बैंक चोरी करने जा रहा है, कोई भी एक दूसरे का रियल नाम नहीं लेता है, तो वो एक दूसरे को कोड नेम दे देते हैं. वैसे ही ऑल दी एक्सपेंसेस हैव अ सर्टेन कोड नेम. Okay, and all these code names do is that they make it little faster, a little more efficient to classify cost quickly. Okay, so what is a cost code? It's a system of symbols used to classify all the costs and record those costs very easily. So that is the meaning of a code. A code is a system of symbols designed to give a brief but accurate reference to items, and this helps in entry into records. It helps in analysis also. So again, it's just a code you give to all the cost, all the expenses. It becomes faster to classify it, faster to record it. So that is with the definition. Next we look into the purpose, that why do we need this. It helps in recording, analyzing, identifying the cost accurately. So what is the first step? The first step is you assign a cost center, right? What do you do is you assign the correct cost center code before identifying the expense types. So there's a two-step logic for coding an expense. At first, figure out where the cost relates. Cost center means we had studied in the initial part of the chapter cost center, right? Where the cost relates to. What does it the cost relate to? Is it related to transport of employees? Is it related to canteen? Is it related to medical facilities for employees? Is it related to gym services for employees? What does the cost relate to? First, you found out cost center. Second, figure out what the cost is for. In that center, what is it for? If we talk about the transport for the employees, is it the petrol that goes? Is it the salary for the drivers? Is it the maintenance of the cars? So first you figure out a center, and inside the center then you figure out what exactly is that cost for. So we will build on that. But this was just about understanding what is a cost code. It's a code you give to all the costs. Why? To record, analyze, identify it accurately. Right? So it's a two-step process. What do you do first? First you figure out a cost center, that where does the cost relate to. Cost center is where does the cost relate to. Okay, cost center tells you where does the cost relate to. It gives you the where. Okay, and then the code that you give. Okay, then you figure out what is the cost for. First step is cost center, where does the cost relate to, and second you identify the expense type. And what do you mean by expense type? Expense type basically means what the cost is for. What the cost is for. Okay, what the cost is for. There are two things. One is the cost center, second is the expense type. One is the cost center, second is the expense type. So cost center tell us where, right? Cost center tells us where, expense type tells us what the cost is for. Okay, one tells us where, second tells us what the cost is for. Okay, one tells us where is the cost incurred, second tells us what is the cost is for. These are the two-step process, and now we look into the various other codes. So these are the हाँ, तो क्या होता है कि हमारे कॉस्ट सेंटर को एक कोड देते हैं, और उसके अंडर जो एक्सपेंस टाइप होता है उसको भी एक कोड देते हैं. तो दोनों को एक कोड दिया जाता है. तो जब भी आप एक कोड पढ़ते हो, वो कोड पढ़ते ही आपको पता चल जाता है कि ये, जैसे हमारे रोल नंबर होते हैं. जैसे कॉलेज में मेरा रोल नंबर था, आई थिंक इट वाज 16 UG 05036. तो 16 से पता चल जाता था कि मेरा बैच 2016 से 2019 का है. यूजी से पता चल जाता था कि अंडर ग्रेजुएट है. 36 से पता चल जाता था कि मेरा रोल नंबर 36 है. वैसे ही कॉस्ट सेंटर का भी एक कोड होएगा,
जैसे आप मशीन ले लो, मशीन को आप 07 बोलोगे, कैंटीन को 16 बोलोगे, और अब उस मशीन के अंदर क्या चीज का खर्चा है, मान लो मशीन का फ्यूल का खर्चा है, तो फ्यूल को आप 23 बोल दोगे, तो उस कॉस्ट को, मशीन के फ्यूल का जो कॉस्ट होगा उसको आप 0723 बोलोगे। ठीक है, तो आप कॉस्ट सेंटर को एक कोड दे दिए, फिर उसके अंदर जो खर्चा था उसको भी एक कोड दे दिया, सिंपल। ओके, डिड यू गेट एन आइडिया हियर वैभवी? ठीक है, तो कैंटीन को 16 दे दिए, ट्रांसपोर्ट को 7 दे दिए। अब दोनों की क्लीनिंग होनी है, तो जब मशीन की ट्रांसपोर्ट की क्लीनिंग है तो आप उसको बोलोगे जो भी ट्रांसपोर्ट का कोड प्लस द क्लीनिंग कोड। अगर आपको कोई मशीन का कोड है तो मशीन का कोड प्लस द क्लीनिंग कोड। तो उसको देखते ही पता चल जाएगा एक कोड को कि क्या चीज का खर्चा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो दैट इज अबाउट दिस। मूविंग ऑन नाउ, सर्टेन टाइप्स ऑफ कोड्स। First, we'll look into is generic codes or functional codes. What do you mean by generic codes or functional codes? Just a minute, I'll grab my water bottle. एक minute, please. Moving on, first we'll look into generic codes. What do you mean by generic codes? So when we talk about generic codes are additional digits that identify the type of expense within a cost center. Okay, within a cost center, what is the type of expense? This is the second part of the code जो अभी हमने पढ़ा था कि कॉस्ट सेंटर के अंदर कौन सा एक्सपेंस है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेंसेस। जेनरिक कोड्स, व्हाट डू दे डू? ये जो सेकंड पार्ट है ये कॉस्ट सेंटर का कोड नहीं है, कॉस्ट सेंटर के अंदर कौन से एक्सपेंस का कोड है, दैट इज कॉल्ड एज अ जेनरिक और अ फंक्शनल कोड। इट इज द एडिशनल डिजिट्स दैट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एक्सपेंस बट विद इन अ कॉस्ट सेंटर। नेक्स्ट वी हैव द पर्पस। व्हाट इज द पर्पस? इट डिस्टिंग्विशेस कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंसेस। एक हो सकता है जैसे कोई भी एक कॉलेज का फीस का एक एक्सपेंस हो गया, फिर हो गया कॉलेज के मेंटेनेंस का एक्सपेंस, दूसरा हो गया कॉलेज के बुक्स का एक्सपेंस। सो हर एक एक्सपेंस का कोड अलग रहेगा बट सब कॉलेज से रिलेटेड है। तो कॉलेज का कोड मान लो 00 है, तो सब सब 00 रहेंगे, बट 00 के बाद जो डिजिट आएगा वो बता देगा कि एग्जैक्टली क्या चीज का खर्चा है ये। ओके, जैसे मशीन ग्रुप है, मशीन हो गया आपका 07, और मशीन के अंदर 23 हो गया जाएगा, तो आपका जो फाइनल कोड आएगा वो 0723 होएगा, तो आपको पता है क्या चीज का है ये। ओके, जो आपका जो फाइनल कोड है 0723 वो बता देगा कि क्या चीज का कोड है ये। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड दिस वन यार वैभवी? ओके, नेक्स्ट वी लुक इनटू स्पेसिफिक कोड्स। अब स्पेसिफिक कोड्स की अगर मैं बात करूं, व्हाट अबाउट स्पेसिफिक कोड्स? So now let's look into specific codes. Now specific codes, these are final digits that identify the exact item of a cost. This is the third part of the code. ठीक है, ये वाला थर्ड पार्ट ऑफ द कोड का हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा था ऊपर, मशीन का 07 तो 07, इनडायरेक्ट मटेरियल का 23 अब इनडायरेक्ट मटेरियल में भी किसका? ऑयल का 04। सो दीज आर द फाइनल डिजिट दैट आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट आइटम ऑफ द कॉस्ट। तो पहले हमने कॉस्ट सेंटर पे आए, फिर एक्सपेंस टाइप पे आए, अब एग्जैक्ट कॉस्ट या एग्जैक्ट आइटम पे आ गए। ठीक है, प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड लॉस क्लासिफिकेशन फॉर अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, एन एग्जांपल इज हियर। ठीक है, तो जेनरिक कोड होता है वो सेकंड लेयर होता है, कॉस्ट सेंटर फर्स्ट लेयर हो गया 07, सेकंड लेयर आपका जेनरिक कोड हो गया, थर्ड आपका स्पेसिफिक कोड हो गया। ठीक है, तो ये एक्सपेंस टाइप में भी कौन से आइटम का एक्सपेंस है वो बता देता है। ओके, क्लियर विद दिस या वैभवी स्पेसिफिक कोड्स? Now moving on to cost code design. What about cost code design? There is no standard format for cost codes. Each organization designs its own code. Every company can decide how many digits to use. Some company use 2 digits, some use 6 digit. It depends on how much detail they need. ठीक है, तो हर कंपनी का अपना डिजाइन होगा, उनको जैसे डिजाइन करना है कर सकते। कोई नहीं बोला है कि 6 डिजिट होने, कोई नहीं बोला कि सिर्फ 2 डिजिट होने, कोई नहीं बोला कि सिर्फ 4 डिजिट होने। तो सबका अपना एक है कंपनी का यूज, और उस यूज के हिसाब से ये लोग अपना डिजाइन कर सकते हैं कैसा इनको कोड चाहिए। ओके, सो जेनरिक इज डन, स्पेसिफिक इज डन। ओके, नाउ वी लुक इनटू सीक्वेंशियल कोड हो गया अपना, ये सबका अपना है। सीक्वेंशियल कोड से अब हम करेंगे नीड्स के हिसाब से, हो गया कोड कॉस्ट डिजाइन हो गया, और नाउ विल स्टार्ट विद द sequential code as the first one. Okay, so now let's look into what about sequential code. So now let's look into sequential code here. तो जब हम sequential code की बात करें, what about sequential code? So sequential code basically
कोड्स आर असाइंड इन न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सीक्वेंशियल कोड में क्या होता है, कोड्स आर इन न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल ऑर्डर। दे आर सिंपल एंड इजी मेथड फॉर नंबरिंग आइटम्स, राइट? इट्स फास्ट टू सेट अप and it doesn't tell you anything about the items, it's just fast to set up, राइट? प्रो है कि ये इजी है, कौन है कि आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि 057 का मतलब क्या होता है, आपको कहीं देखना ही पड़ेगा। तो बस ये सीक्वेंशियली रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 001 मोटर का हो गया, 002 इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, 003 कैंटीन का हो गया, 004 ट्रांसपोर्ट का हो गया, 005 इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, 006 फर्नीचर का हो गया। तो यहाँ पे कोड्स आर असाइंड ऑन न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दे आर सिंपल एंड इजी। बट इसका सबका प्रो भी है, कौन भी है। सिंपल इजी तो जरूर है, बट आपको किसे पता कि किसका मतलब क्या होगा? तो आपको एक रेफरेंस यूज ही करना पड़ेगा ऑल द टाइम, या तो आपको याद रखना पड़ेगा या आपको यूज करना पड़ेगा। तो दैट इज अ कॉन, दैट यू कांट टेल व्हाट 057 इज विदाउट लुकिंग इट अप। तो आपको देखना पड़ेगा, तो होता है सीक्वेंशियल कोड। बस सीक्वेंशियल इसलिए बोला जाता है कि ये एक ऑर्डर में होता है, राइट? कोड्स आर असाइंड इन न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एक ऑर्डर में रहता है, इसलिए सिंपल और इजी है, ऑर्गेनाइज्ड है। पर इसका दिक्कत ये है कि बस आपको हमेशा एक रेफरेंस यूज करना पड़ेगा जानने के लिए कि कौन सा एक्सपेंस क्या चीज के लिए स्टैंड करता है। तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। इज दिस क्लियर? यार सीक्वेंशियल कोड वैभवी? ओके, मूविंग ऑन टू ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड में क्या होता है, यू ग्रुप सिमिलर आइटम्स इनटू ब्लॉक्स ऑफ कोड्स, ईच कैटेगरी गेट्स अ ब्लॉक और अ रेंज ऑफ नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल, it makes classification easier by adding a range of categories. You can see categories just by looking at the range. जैसे फॉर एग्जांपल, जो भी 3000 से 3999 तक है, सब कुछ करंट असेट्स है। तो इसके विद इन जो भी होगा, ये सब करंट असेट्स होगा 3000 से 399 तक। ठीक है, जहां भी 3 से शुरू हो रहा है, विद इन दिस नंबर कुछ भी जो भी है सब करंट असेट्स है। तो आपको रेंज याद रहेगा, तो आपको पता रहेगा कि वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। जैसे मान लो सारे रेड कलर के कपड़े आपके, आप उनको एक कोड दे दियो, ठीक है, 3000 से 399, तो आपको जैसे ही वो आपको कोड देखोगे, आपको बताओगे ये सारे मेरे रेड कपड़े हैं। सारे ब्लैक कपड़ों को 4000 से 4999 तक का कोड दे दिया आपने, तो आप वो कोड देखते हैं, बता हाँ ये मेरे सारे ब्लैक कपड़े हैं। तो आप एक रेंज को, एक स्पेसिफिक आइटम को वो रेंज एलोकेट कर देते हो। जैसे करंट एसेट्स को सिर्फ आप वो कोड दोगे, करंट लायबिलिटी को सिर्फ वो कोड दोगे, तो अब वो एक कोड का पूरा रेंज आप एलोकेट कर देते हो, एक पूरा रेंज आप एलोकेट कर देते हो। ओके, एक पूरा रेंज आप एलोकेट कर देते हो। दैट इज अबाउट दिस। मीनिंग क्या है, इट ग्रुप सिमिलर आइटम्स इनटू ब्लॉक्स ऑफ कोड्स। जो भी सिमिलर, सारे रेड टी शर्ट एक ब्लॉक में रहेंगे, सारे ब्लैक टी शर्ट एक ब्लॉक में रहेंगे। इट मेक्स योर क्लासिफिकेशन इजियर बाय असाइनिंग अ रेंज टू कैटेगरी। आप कैटेगरी को एक रेंज दे देते हो कि इस कैटेगरी में सिर्फ यही रेंज चलेगा, इस कैटेगरी में सिर्फ यही रेंज चलेगा। तो जैसे ही कुछ भी 3 से स्टार्ट हो रहा है, आपको पता है वो करंट असेट्स है। अब उसमें क्या स्पेसिफिसिटी, वो ऑब्वियसली देखना पड़ेगा, बट हाई लेवल आपको एक आइडिया आ जाएगा। इट इज गुड फॉर ग्रुपिंग, इट्स यूज्ड अ लॉट। ठीक है, ये वाला ब्लॉक कोड। इज दिस क्लियर? ये वैभव अभी? ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं हायरार्किकल कोड। सीक्वेंशियल हो गया, ब्लॉक हो गया, अब हायरार्किकल कोड देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हायरार्किकल कोड? तो अगर हायरार्किकल कोड की मैं बात करूं, तो हायरार्किकल कोड in this particular code what happens is each digit or section represents a different level of classification. जैसे फॉर एग्जाम्पल बिग स्मॉल मीडियम, ऐसे आप सोचो, बिग स्मॉल मीडियम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक रहेगा कि ईच डिजिट और सेक्शन रिप्रेजेंट अ डिफरेंट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। इट अलाउज अ मोर डिटेल क्लासिफिकेशन विथ अनलिमिटेड एक्सपेंशन। अब कितना भी डिटेल में जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लो 1.1.1, तो 1 हो गया आपका रीजन जो है यूके, एक और 1 हो गया प्रोडक्ट टाइप जो है लैपटॉप, और एक और 1 हो गया वो हो गया सेल्स। ठीक है, तो यूके के लिए एक कोड हो गया, लैपटॉप के लिए एक कोड हो गया, सेल्स के लिए एक कोड हो गया। तो 1.1.1, और इसमें आप कितने भी पॉइंट डाल डाल के इसको कितना भी डिटेल्ड बना सकते हो। ठीक है, तो यूके लैपटॉप सेल्स, तो सबको आपने एक कोड दे दिया है कि ये यूके का है, ये लैपटॉप का है, ये इसका है। तो इसमें जैसे जैसे चीजें बदलती रहेगी, जैसे एक और हो जाएगा 211, और 2 इंडिया हो जाएगा मान लो, तो इंडिया लैपटॉप सेल्स 211। फिर अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका लैपटॉप सेल्स 311। ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा 411, लंदन हो जाएगा 511, ठीक है, मिडल ईस्ट हो जाएगा 711 या 611, जो भी। तो वैसे आप एकदम डिटेल में जा सकते हैं, एक लैपटॉप हो गया, एक सेल्स हो गया, एक कंट्री हो गया। तो ऐसे आप अनलिमिटेड एक्सपेंशन कर सकते हो, और ईच डिजिट रिप्रेजेंट्स अ लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। ये काफी डिटेल टाइम में यूज आता है। ओके, सो दिस इज अबाउट हायरार्किकल। मूविंग ऑन नाउ।
सिग्निफिकेंट डिजिट कोड, इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल डिजिट्स हैव स्पेसिफिक मीनिंग्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज सिमिलर टू हायरार्किकल बट सिंगल डिजिट पोजीशन मीन समथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो 2010, 2010 क्या है कि 2 का मतलब हुआ स्टेशनरी, 2 का मान लो 2 का मतलब हुआ स्टेशनरी, 0 का मतलब हुआ ये एक पेपर का प्रोडक्ट है, 1 का मतलब हुआ डिवाइडर्स, और जो लास्ट 0 इसका मतलब हुआ ये 10 का पैक है, 10 की गड्डी है, ये 10 का पैक है। ठीक है, तो फर्स्ट 2 का मतलब हुआ ये एक स्टेशनरी का आइटम है, 0 का मतलब हुआ एक पेपर का प्रोडक्ट है, 1 का मतलब हुआ एक डिवाइडर है, और एक और जो आखिरी 0 इसका मतलब हुआ कि ये 10 का पैक है। ठीक है, तो जस्ट बाय लुकिंग एट द कोड यू गेट टू नो द की फैक्ट्स अबाउट द आइटम, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द आइटम। एंड इसका क्या होता है कि अब इंडिविजुअल डिजिट्स हैव स्पेसिफिक मीनिंग्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक सिमिलर है, हायरार्किकल से बहुत सिमिलर है, बट यहाँ पे सिंगल डिजिट पोजीशन मीन समथिंग। ठीक है, तो सिंगल डिजिट पोजीशन ऑल्सो मीन समथिंग, तो हर एक सिंगल सिंगल डिजिट का पोजीशन ऑल्सो मीन समथिंग। ठीक है, तो ये हो गया अपना सिग्निफिकेंट कोड, दैट इंडिविजुअल डिजिट्स हैव स्पेसिफिक मीनिंग्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कोडेड आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे था ईच डिजिट और सेक्शन रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, इट अलाउज अ लॉट मोर डिटेल्ड। यहाँ पे इंडिविजुअल डिजिट्स हैव स्पेसिफिक मीनिंग्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कोडेड आइटम मोर देन द क्लासिफिकेशन। ये कोडेड आइटम की बहुत जानकारी देता है, और एग्जांपल ये ले लिया कि जैसे 2010 में जो 2 था वो स्टेशनरी बोला, 0 बोला पेपर का प्रोडक्ट है, 1 बोला कि ये डिवाइडर्स है, और जो लास्ट 0 है वो बोला कि ये है 10 का पैक है। तो इससे आपको पूरी एक क्लैरिटी मिल गई कि हर एक डिजिट स्टूड फॉर समथिंग, और हर एक डिजिट से आपको एक क्लैरिटी मिली उस आइटम के बारे में, मोर देन द क्लासिफिकेशन आपको उस आइटम के बारे में जानकारी मिली। तो दैट इज अबाउट दिस। नेक्स्ट लेते हैं फेसिटेड कोड। इसमें क्या होता है, द कोड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट फैसेट्स, इसलिए फेसिटेड बोलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फैसेट्स में डिवाइडेड है, एंड ईच रिप्रेजेंटिंग अ वेरी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ईच रिप्रेजेंटिंग अ वेरी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, सो लेट्स लुक इनटू दिस। The code is divided into different facets and each representing a different information. It provides a lot of detail. जितना ज़्यादा बड़ा है या जितने ज़्यादा facets है उतना detailed है। For example, 03 अपना USA हो गया, प्रोडक्शन हो गया, और बोनस पेमेंट्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, यूएसए का एक कोड हो गया, प्रोडक्शन का एक कोड हो गया, और बोनस पेमेंट का एक कोड हो गया। तो ये कोड क्या कर रहा है, यहाँ पे सिंगल डिजिट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीपल डिजिट्स भी, एक कोड भी मल्टीपल डिजिट्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फेसिटेड कोड विच इज वेरी सिमिलर, बट येट अगेन यहाँ आप देख रहे हो कि मल्टीपल डिजिट्स भी एक कोड में ही आ सकते हैं। जैसे यूएसए मोर प्रॉब्ली 03 यूएसए हो गया, 0202 प्रोडक्शन हो गया, और 247 लास्ट का बोनस पेमेंट हो गया। तो यहाँ पे सिंगल कोड का कोई महत्व नहीं है, पर जहाँ पे आप देख रहे थे पहले वहाँ सिंगल सिंगल कोड चल रहे थे। हायरार्किकल में भी सिंगल कोड था जो एक बता रहा था क्लासिफिकेशन के बारे में, और अपना सिग्निफिकेंट डिजिट में भी था, पर वो आइटम के बारे में बता रहा था, अबाउट द आइटम। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे डबल डबल डिजिट्स भी हैं, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट्स होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये सबसे इजी है निमोनिक। निमोनिक कोड क्या होता है, वो एक शॉर्ट फॉर्म बना देते हो आप, बेसिकली जब हम पढ़ते थे तो अब हर एक चीज़ का आप शॉर्ट फॉर्म बना देते हो। नॉन करंट असेट्स को आप एनसीए बोल देते हो, एक्सपेंसेस को ईएक्सपी बोल देते हो, रेवेन्यू को आरईवी बोल देते हो। तो यू जस्ट मेक अ निमोनिक आउट ऑफ इट्स रियल नेम ओनली, सो इट्स नॉट सुटेबल व्हेन यू नीड अ लॉट ऑफ डिटेल, तब ये काम का नहीं है। जब बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए तब ये काम का नहीं है। Okay, when you need a lot of detail, this is not very useful. It makes things obviously simple and it becomes easy to remember. सबसे बड़ा benefit है कि it's easy to remember. सबसे बड़ा benefit है कि it is easy to remember. That is the biggest benefit, that it is very easy to remember. The biggest benefit it is that it is very easy to remember. Okay. The biggest benefit is that it is very easy to remember. वो सबसे बड़ा benefit है. बट अदरवाइज अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो ये उतना काम का नहीं है, दिस पर्टिकुलर way of going about it.